हेलो प्लस टू क्लास ਆਪਾਂ ਟਰਮ 2 ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਟਿਕਸ। ਆਪਟਿਕਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ठीक है, इस रे ऑफ लाइट दी रिफ्लैक्शन भी होती है। वैसे तुसी ये टॉपिक बड़ी अच्छी तरह 10th क्लास च पढ़ चुके हो, बट आपां प्लस 2 च भी ये रिवाइज करांगे। वट इज रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट? यह एक फिनोमिना है जिस विच लाइट दा पाथ चेंज हुंदा है विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। जदों मीडियम चेंज नहीं हो रहा, लाइट अपना पाथ चेंज कर रही है। अ स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस है यह रेगुलर रिफ्रैक्शन करेगी। जिहड़ी भी लाइट इस ते पएगी, ठीक है, उसका रिफ्लैक्शन करेगी ये, एंड इस सरफेस नूं आपां कह दिंदे आ मिरर। ठीक है, वैसे किसी भी सरफेस ते रिफ्लैक्शन हो सकती है, बट जदों एक स्मूथ एंड वेल पॉलिश सरफेस है जिहड़ी कि रेगुलर रिफ्लैक्शन कर रही है, जिन्नी भी मैक्सिमम लाइट इते पै रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मिरर। रेगुलर रिफ्लैक्शन का हुण की मतलब है? इसका मतलब है जिहड़ी रिफ्लैक्टिड रे राइट है, इस तरह देखो लाइट किसी सरफेस ते पई एंड रिफ्लैक्ट होई, दिस रिफ्लैक्टिड लाइट जदों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन च जाती है, नॉट इन ऑल डायरेक्शंस बट इन स्पेसिफिक वन पर्टिकुलर डायरेक्शन च जाती है, देन वी से दिस इज रेगुलर रिफ्लैक्शन। हुण इस फिगर च देखो तुसी M1 एंड M2 सपोज कर लो, अपने कोल एक प्लेन मिरर है, दिस इज प्लेन मिरर, राइट, एंड इस ते एक इंसीडेंट लाइट जिहड़ी इस मिरर दे उत्ते पै रही है, दैट इज इंसीडेंट लाइट। जिहड़ी लाइट रे मिरर दे उत्ते पै रही हुंदी है उसनूं आपां कहने आ इंसीडेंट रे या इंसीडेंट लाइट। इसनूं आपां नेमिंग कर दिंदे आ, दिस इज AO। एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड राइट। सरफेस ते टकराई विदाउट एनी चेंज ऑफ मीडियम। इत्थे आपां मीडियम सपोज करके चल रहे हैं कि एयर है मीडियम, विदाउट एनी चेंज इन मीडियम दिस रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है, इस O पॉइंट ते आपां एक नॉर्मल ड्रा कर लेने आ ON। Now this angle ON is called angle of incidence, and if this is OB, reflected light या reflected ray, then the angle between normal and reflected light is called angle R. Angle
AOB is I, angle NOB is angle R. This is angle of incidence, this is angle of reflection. According to laws of reflections, this angle I will be equal to angle R. This is first law. And second law is incident ray, that is AO, this, and reflected ray, that is OB, this ray, and normal ON, this ON. To the mirror, ये सारी तीने lines will lies in same plane. ठीक है, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲਾਈਨਸ ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ I 0 ਹੋਵੇ then R ਵੀ 0 ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ I is equal to R। ਮਤਲਬ ਜੇ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨਾਰਮਲੀ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਟ ਨਾਰਮਲ, then ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਪਾਥ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੀਟਰੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੇਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। That image is virtual। ਇਹ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਇਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਆਭਾਸੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਲੁਕਿੰਗ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਰੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਭਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੇਜ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਿਟਰਲੀ ਇਨਵਰਟਿਡ। ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜਾ ਦਿਖੇਗਾ, ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਬਾ ਦਿਖੇਗਾ। These are qualities of image formed in plane mirror। इस तो बाद है अपने को सपोज करो दो मिरर्स हैं, ਉਹ ਕਿਸੇ एंगल ते इनक्लाइंड हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੇਜ ਬਣਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੇਜ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਇਮੇਜ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੇਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। जे 360 अपॉन थीटा ਈਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 360 अपॉन थीटा ਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਈਵਨ ਹੈ then the formula is n is equal to 360 degree upon theta -1, and n will be 360 upon theta if 360 upon theta is odd।
मैं थोनों इहदी एग्जाम्पल भी दस रही हाँ। एक अपने कोल दो मिरर है, दो मिरर दे विचकार एंगल है 60 डिग्री। देन n 360 अपॉन 60 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज 5। ठीक है, मतलब 5 इमेज बननगे उस पॉइंट ऑब्जेक्ट दे M1 एंड M2 दे विचकार। जदों थीटा सपोज करो 40 डिग्री है, देन 360 अपॉन 40 दिस इज 9। ठीक है, ओड इंटीजर आ गया। देन अपने कोले 9 इमेज बननगे जे थीटा 40 डिग्री है। मतलब आपां इहदी वैल्यू देखनी है, जे ईवन है तो -1 करना है, जे 360 अपॉन 40 की वैल्यू ऑड आंदी है तो -1 नहीं करना हैगा। जिन्ना आंसर आंदा है उन्ने ही इमेज फॉर्म होणगे। अपने कोल कोई इंसीडेंट रे गिवन है तो आपां जदों प्लेन मिरर नू क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने आ किसी एंगल थीटा ते, तां रिफ्लैक्टेड रे भी उसे एंगल दे विच घुमदी है। जे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्लॉकवाइज घूमेगी रिफ्लैक्टेड रे, जे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं देन रिफ्लैक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, पर एंगल हो जाएगा 2 थीटा। जे आप इंसीडेंट रे नू थीटा ते घुमा रहे हैं तो रिफ्लैक्टेड रे जिहड़ी हैगी है 2 थीटा ते उसे डायरेक्शन च घूमेगी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स की हुंदे ने, एक हॉलो स्फीयर दा पार्ट हुंदा है। ठीक है, पूरा हॉलो स्फीयर है, इसका एक पार्ट है एनक, जिसदी वन साइड रिफ्लैक्टेड हुंदी है, वन साइड दिस साइड रिफ्लैक्टेड एंड अदर साइड इज ओपेक। इस केस से देखो, इसनू आपां कनकेव मिरर कहने आ, इसनू कन्वैक्स मिरर कहने आ। हुण इहनां च फर्क की हुंदा है? कनकेव मिरर दी अंदरली साइड दिस साइड यह रिफ्लैक्टिंग हुंदी है ते बाहरली साइड ओपेक हुंदी है। राइट, इसनू आपां इस तरह शो कर दिन्ने हुन्ने आ। जे डेफिनेशन लिखनी होवे तुसी कनकेव मिरर दी, whose reflecting surface is towards the center of the sphere. Now this is center of the sphere. Reflecting surface towards the center of the sphere होएगी, जिसदा कि मिरर यह पार्ट है, पूरे स्फीयर दा पार्ट है यह, उसका पूरे स्फीयर दा एक सेंटर है। इस सेंटर दे वल जे रिफ्लैक्टिंग सरफेस है, जिस सरफेस ते रिफ्लैक्शन हो रही है, देन दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। कन्वैक्स मिरर दे विच हुंदा है, जिहड़ी रिफ्लैक्टिंग सरफेस हुंदी है ओह अवे फ्रॉम रेडियस हुंदी है। दिस आउटर सरफेस विल बी रिफ्लैक्टिंग and this inner surface will be opaque. Right. इस एक होर टर्म हुंदी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कनकेव मिरर ते कन्वैक्स मिरर दी कुछ टर्म्स आपां डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ
curvature. स्फीयर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਿਰਰ ਦਾ center of curvature ਹੁੰਦਾ ਹੈ, and this is denoted by C. right, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ hollow sphere ਦਾ radius ਹੈ। नेक्स्ट टर्म है पोल। व्हाट इज पोल? इस मिरर दा, इस स्फेरिकल मिरर दा सेंटर पॉइंट, दिस सेंटर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर और वर्टेक्स ऑफ द मिरर। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? जिस होलो स्फीयर दा मिरर पार्ट है उस होलो स्फीयर दा जेड़ा रेडियस हुंदा है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। हुण इसका रेडियस जिवें CP है या PC है, ठीक है। सो दिस PC इज इक्वल टू R, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर is the radius of the sphere of which the mirror form a part. नेक्स्ट टर्म है नॉर्मल। नॉर्मल टू द स्फेरिकल मिरर एट एनी पॉइंट। स्फेरिकल मिरर दे नॉर्मल किसी भी पॉइंट ते जदों कोई लाइन ज्वाइन कर रही है दैट विल बी नॉर्मल ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। एंड इस तरह ही जिस तरह अपर्चर हुंदा है, अगली टर्म है अपर्चर। नाउ व्हाट इज अपर्चर? दिस डायमीटर M1 तो M2 इथों लेके इत्थे तक दिस इज कॉल्ड अपर्चर। यह तुसी कन्वैक्स मिरर लई भी इस तरह ही लेना है M1 to M2। दिस इज अपर्चर ऑफ कन्वैक्स मिरर, राइट। इस तरह ही कन्वैक्स मिरर दा पोल रेडियस सो नेक्स्ट है एंगुलर अपर्चर। व्हाट इज एंगुलर अपर्चर? स्फेरिकल मिरर दा एंगुलर अपर्चर हुंदा है एंगल M1 CM2। M1 CM2 this angle is angular aperture। इस तो बाद टर्म है प्रिंसीपल एक्सिस। देखो पोल ते सेंटर नू मिलांदी हुई जिहड़ी लाइन है जे आपां इस नू अगे वधा दिन्ने आ, ठीक है, देन दिस इज प्रिंसीपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल
एक्सिस। सो ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਸੀਗੀਆਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆਪਟਿਕਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਐਂਡ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ टिल देन टेक केयर बेटा।